Hariom Namaste, very good evening everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So in the previous lecture we have started with the new act, Prevention of Corruption Act 1988. So here we are back again with the same topic. So it is going to be the part 2 of the video. In part 1 we have discussed first and second sections and its related objective of this particular act and few other things. So for all those who hasn't seen that video, please go and watch that video and let me know in the comment section whether you liked this and that video or not, or what are your views of which other subject should I cover for your CBI APP revision, right? So let's start with today's video. So in the last video we were covering section number 2, important definitions. We were covering the terminology under subsection C of public servant, and the last point we were discussing who were considered as public servant for this particular act was persons authorized to do a public duty. That I have discussed in the previous video, in the last few minutes of that previous video, so you can check that out. Now let's proceed further and complete the list of who could be considered as a public servant for this particular act. हाँ जी, तो आइए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं. यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है. सो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ऑफिस बेयरर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इन लोगों को भी हम पब्लिक सर्वेंट कैलकुलेट करते हैं. अब रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ हाउसिंग यहाँ पे नहीं है. इफ दे आर एंगेजिंग विद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और बैंकिंग और रिसीविंग एनी काइंड ऑफ एड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, then also they would be covered under this particular heading of public servant. Who? The president of that society, the secretary of that society, and the office bearers, which would include the treasurer also at that time, or committee member, right? Next, chairman, members, employees, students. If you have any doubt at any point, please do mention in the comment section. If you are liking today's video, don't forget to hit like, share button, and for all those who hasn't subscribed our particular channel, please do subscribe our channel GK Law Classes, right? Chairman, member, employees of any service commission. I am telling you which service commission, any service commission or board, right? So let's check it out. Which kind of service commission are they talking about? They are talking about the Public Service Commission, the Union Public Service Commission, the State Public Service Commission, the State Subordinate Public Service Commissions, the Joint Public Service Commissions. तो आप ऐसे मार्क करके नीचे ब्रैकेट के अंदर डेफिनेटली लिख सकते हैं. जो चीज़ें मैं बोर्ड पे नहीं लिखती हूँ बट मैं आपको वर्बली बताती हूँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप डेफिनेटली उसे भी पेन डाउन कीजिए एज अ साइड पॉइंट. आप उसे स्टार लगा के वहाँ पे एज एन एक्स्ट्रा एडिशनल नोट वहाँ पे मार्क कर सकते हैं. सो वाइल प्रिपेयरिंग आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है उस पॉइंट के रिगार्डिंग. नाउ वी कम टू बोर्ड. हियर द बोर्ड्स आर इन रिगार्ड टू द एजुकेशनल entities or those who conduct examinations. तो यहाँ पे आपके पास बोर्ड जैसे आपकी CBSE हो गया, आपका NDA हो गया, ये सारे क्या है? They are exam conducting bodies. So any of the chairman, member or employee of service commission or board would also be considered as a public servant, and if they commit any kind of corrupt practices, they are going to be penalized. Now the one question that few of you asked me while I was covering this particular point, right? Which body is basically interested with the responsibility of penalizing the public servants for committing corrupt practices? Now this is a Q point. ठीक है, यहाँ पे आप मार्क कीजिए और वो Q point लिखिए अलग से separately. Which entity is entrusted with duty to penalize or to उनको कैच करने की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें पकड़ने की और कैच आउट
public officials committing corrupt practices, ठीक है, under this act, I am talking about under this act, ठीक है. So which entity is responsible? Who is responsible? The answer is Central Bureau of Investigation, CBI. So basically जब आप यहाँ पे ये चीज़ के बारे में अगर आपको याद रहा तो आप कैच कर सकते हैं. ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहता है कि कौन सी ऐसी एंटिटी. कुछ बच्चे जो है रिटन एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं बट फिर उनको ऐसा मेजर क्वेश्चन ही नहीं पता होता कि कौन सी एंटिटी जो है वो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत करप्ट ऑफिशियल्स को पकड़ती है और उन्हें स्पेशल जज की कोर्ट में प्रेजेंट करके केस को प्रोसिक्यूट करके जो है उनको पीनलाइज कराती है, उनको सेंटेंस कराती है, उनको बुक करते हैं वहाँ पे, राइट. तो आप इस चीज़ को यहाँ पे पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है. अगर आपको ये पता होगा तभी इजी रहेगा. नंबर 3, interwoven acts. Okay, there was a doubt in regard to one of my students when I was covering an offline lecture in this particular act in that regard. So she came up with this particular question. तो ये interwoven acts मैंने आपको क्यों यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, और जो आपका ये PCA है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अगेन इसको आप क्वेश्चन ही बना लीजिए यहाँ पे. ये तीनों ही इंटरवोवन एक्ट हैं, ठीक है. एक दूसरे से ये पावर अथॉरिटी जो है ये ड्राइव करते हैं. किस एक्ट के नीचे करप्ट ऑफिशियल्स पकड़े जाते हैं, किसने पकड़ना है, और कभी कभी जो हायर अथॉरिटी पे ऑफिशियल्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट आती है और उसकी इंक्वायरी इनिशिएट कराने के लिए जो नोटिसेस देते हैं, ये तीनों एक्ट जो है वो इंटरवोवन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है. DPSC के तहत जो है आपका जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका गठन किया जाता है. ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. ये उसका पेरेंट एक्ट है, ये उसका प्रिंसिपल एक्ट है. CVC जो है विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस मतलब जिसने निगरानी करनी है, जिसने देख रेख करनी है टू मेक श्योर करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो. तो दे आर बेसिकली दोस्त जो इनिशियल इंक्वायरी कंडक्ट करा के आगे जो CBI को जो ये पावर देते हैं, ऑर्डर्स भी देते हैं, और आप कह सकते हैं नोटिस भी देते हैं कि हमारी होम में करप्ट प्रैक्टिसेस आई है तो आप जाके उन्हें बुक करिए अंडर दिस PCA एक्ट. तो ये एक्ट से बेसिकली उनकी पावर आती है जिस एक्ट के तहत वो उनको बुक करते हैं, उनको कोर्ट के सामने जाके प्रेजेंट करते हैं. सो दीज आर गोइंग टू बी द इंटरवोवन एक्ट. जब आप ये तीनों एक्ट पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे. वैसे CVC के रिगार्डिंग भी एक वीडियो हमारे चैनल पे है, इसे भी आप देख सकते हैं. बट अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से इसको डिस्कस करूं फॉर योर बेटर रिविजन इनटू अ न्यू इंस्टेंस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट. सो ये दो ऐसी चीज़ें थी जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स ने पूछी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर ही देती हूँ ताकि आप लोगों की रिविजन में कोई डाउट ना रहे, राइट. ऑलराइट, हाँ जी. तो अब हम इसके अलावा और कौन कौन पब्लिक सर्वेंट में आते हैं. अच्छा, इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ये आपको याद हर हालत में करना ही होगा, इसके ऊपर कोई तारीफ नहीं बरती जा सकती. अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हो गई, जो आपके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उसके अंदर काम करने वाले वाइस चांसलर्स, ठीक है, प्रोफेसर्स, टीचर्स, जो आपके रीडर्स, एम्प्लॉयज, वो सारे भी यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आएंगे. बट इफ वी टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होता है. इसके अलावा एक और कैटेगरी यहाँ पे आती है, दैट इज साइंटिफिक, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस. साइंटिफिक, सोशल, cultural institutions, ठीक है, these institutions receiving financial aid by either central or state government or by the local authority. तो इन लोगों को भी हम पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में कैलकुलेट करते हैं. अब हम अगले सेक्शन में चलते हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं. अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ सेक्शन
नंबर्स मेंशन किए हुए हैं. नाउ व्हेन वी बुक अ पर्सन और एन ऑफिशियल फॉर करप्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसकी पेशी किसके सामने की जाती है? दैट इज रिगार्डिंग द सेक्शन नंबर 3. उसे प्रेजेंट किसके सामने किया जाता है? फॉर प्रोसिक्यूशन, फॉर नोइंग वेदर ही इज बेसिकली लायबल और नॉट, व्हिच पनिशमेंट शुड बी गिवन. सो अंडर दिस एक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज इज डन, ठीक है, by central or state government. Central or state government. So appointment of special judge would be the heading of this particular section, right? So यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट जो है एक जज बनाएगा जिसने ऑफेंसेस को ट्राई आउट करना है, पनिशमेंट देनी है अंडर दिस एक्ट. अब इसके अंदर यहाँ पे बात है कि कौन जज बनाया जाएगा. The question is who could be a special judge. ऐसे भी किसी को उठाकर किसी मजिस्ट्रेट को यहाँ पे जज नहीं बना सकते. There has to be a requisite when we are covering this position. So he or she must be means mandatorily, right? Either a session judge or additional session judge in a district court where the crime has been committed or where the corruption has been committed or where the bribe has been given and accepted by the public official, right? So वहाँ के जो सेशन या एडिशनल सेशन जज होते हैं वहाँ पावर दी जाती है स्पेसिफिकली. अगर यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर आती है, अदरवाइज स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट कंसर्न से पावर आती है और उन्हें फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है एज ए स्पेशल जज अपॉइंट किया जाता है जिनके सामने उस ऑफिशियल को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी. अब इस चीज़ के अंदर, इस एक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं पीनलाइजिंग, कौन सी चीजें पीनलाइज होंगी ये भी आप ध्यान में रखिए. ये भी इस सेक्शन में लिखा है. सबसे पहले ऑफेंस कमिटेड की हो गया है, ठीक है, उन्होंने ब्राइबरी जो है या कोई और फेवर ले लिया हुआ है सामने वाली पार्टी से. सो ऑफेंस कमिटेड, ठीक है. कॉन्स्पिरेसी टू कमिट, ठीक है. अटेम्प्ट टू ब्राइब or even the abatement of offense would be punishable, right? तो इन तीनों चारों केसेस के अंदर वो स्पेशल जज जो है अपना केस जो है उसको देखेगा और सारे गवाहों की स्टेटमेंट लेगा, सारी स्टेटमेंट लेगा और फाइनली जो है अपनी जजमेंट पास कर देगा. तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो है, ये वाला पॉइंट इसी सेक्शन का ही हिस्सा है, ठीक है. आगे चलेंगे. नेक्स्ट सेक्शन केसेस ट्रायबल, सेक्शन नंबर 4 केसेस ट्रायबल. तो केसेस कैसे ट्राई किए जाएंगे इनटू दैट स्पेशल कोर्ट, ठीक है. सबसे पहले तो डे टू डे बेसिस के ऊपर ही केसेस को ट्राई किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो है लैग ना करे, टाइम वेस्टिंग ना हो. मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, कि एक केस कितने देर तक लंबा से लंबा खींच सकता है या चल सकता है या किसी कारण उसको आगे शिफ्ट किया जा सकता है, उसकी सुनवाई जो है वहाँ पे की जा सकती है. दैट इज 2 years फ्रॉम द डेट जिस दिन पहले दिन केस की पहली सुनवाई लगनी है, केस एडमिट किया जाता है स्पेशल जज के साथ, ठीक है. बट इसके अंदर कॉन्डोनेशन अवेलेबल होती है, ठीक है. कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इज परमिसिबल, दैट इज 6 months, ठीक है, इन एग्रीमेंट. बट अगर हमने सपोज कीजिए ऑलरेडी जज कह रहा है कि भी बिकॉज ऑफ XYZ रीजन 2 साल से ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है, केस ऑलरेडी 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी हो गया. तो अब इसके बाद जो आपकी फाइनल एग्रीगेट मतलब लास्ट लिमिट जो होगी वो होगी 4 years. तो कोई भी केस उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है 2 years में कंप्लीट हो जाएंगी. 6 months की कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिल सकती है. लास्ट लिमिट 4 year. इससे ज़्यादा लंबा कोई केस नहीं चलाना. ये पीछे से उनको ऑर्डर है, इस एक्ट में ऑर्डर है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा. हर जज का, एवरी जज हैज एरिया डिवाइडेड. So the area of the judge jurisdiction is divided. Area of every judge
है जुरिस्डिक्शन है वो डिवाइडेड होता है। ये सर्कल इसने कवर करना है, ये सर्कल इसने कवर करना है। जो सब डिविजन्स हैं किसकी कैसे आएंगे, तो कौन सा जज कवर करेगा। कभी कभी एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 एडिशनल जज स्पेशल केसेस पे होते हैं, स्पेशल जज अपॉइंट होते हैं अंडर दिस एक्ट, क्योंकि वो रीजन बड़ा होता है, राइट। नेक्स्ट आइए फटाफट चलते हैं, क्योंकि मैंने पहले प्रीवियसली वीडियो में कह दिया था कि 2 से 3 पार्ट की वीडियो है, इससे छोटी में नहीं है, तो पेशेंस तो आपको रखनी ही पड़ेगी। 5 पावर एंड प्रोसीजर, राइट। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, केस कैसे वहां पे ट्रायल होगा। इट विल बी डन एज इन ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा फॉर द ट्रायल ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल, राइट। नेक्स्ट सेक्शन, ओके, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ चीजें क्लैरिफाई करी हुई है। पावर टू ट्राई सिमिलरली, सेक्शन नंबर 6, टू ट्राई सिमिलरली। तो कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ इसके अंदर 1-2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसके तहत जो लिमिट है फॉर डिसाइडिंग द केस और फाइनलाइजिंग द ऑफेंसेस और फॉर लाइक पेनलाइजिंग दैट पर्टिकुलर अक्यूज्ड इज 1 ईयर, ठीक है। तो ट्राई कुछ केसेस आप सिमिलरली कर सकते हैं, 1 साल में निपटारा हो सकता है। वो कौन से ऑफेंसेस होंगे, ऑफेंसेस committed under section 12A(1) of Essential Commodities Act। इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है हमारे पास, वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। और ऑर्डर गिवन अंडर ऑर्डर इंक्लूडिंग सबसेक्शन 2 of section 12A। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्शन 12A(1), यहाँ पे कोई ऑर्डर जो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12A में पास किया गया है, तो उसको कितनी देर में ट्राई कर सकते हैं। स्पेशल जज के पास पावर है 1 ईयर से। ये आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी होगी कि कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट को सिमिलरली ट्राई किया जा सकता है। अदरवाइज बाकी सब पे प्रीवियस सेक्शन 4 भी वहाँ पे अप्लाई होता है, राइट। सो अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम आगे आपसे मिलेंगे पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे ऑफेंसेस पेनल्टीज के रिगार्डिंग एंड जो बचे हुए आपके थोड़े बहुत और सेक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग। वो सारे इजी सेक्शंस है, डिफिकल्ट नहीं है। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव लाइक हैविंग अ गुड टाइम इन रिवाइजिंग दिस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड यू डेफिनेटली वेट फॉर पार्ट 3। फॉर ऑल दोज हु हैजंट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। I'll see you next with another video on prevention of corruption. Till then, keep learning.